No. First, please, first you have to write down what lessons पार्ट बी जो बॉयकॉट और बनु हाशिम मैंने आपको डिक्टेट करवाया था पार्ट ए उसका पार्ट बी लिखो पहले फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन पार्ट बी ओके नो नो what whatever you have written excuse me students whatever you have written just okay I know beta if you have written event of type after that leave one or two lines and then write the question part b just you have to write small part b in bracket and after that I am dictating the question I will explain later but first of all let me dictate you the part b of part a. Part A was describe the main events of boycott of Banu Hashim. Now please write down the question of part B. I know. Just please ask anyone who can help. Ayan Kaisa will help. Ayan, just wait when he comes back and after that. Okay. What lessons do Muslims learn from this event? Part B question is what lessons do Muslims learn from boycott of Banu Hashim? Directly write down. What lessons do Muslims learn from boycott of Banu Hashim? Question mark. Bracket mein you have to write down 4 marks. Four marks. Yes, yes. What lessons do Muslims learn from boycott of Banu Hashim? Question mark. Bracket mein you have to write down 4. And now you have to write down only keyword. Now I am 4. Just write down point number 1, patience. Yes. The first point of answer is number 1, patience. Number 2, only patience. Number 2, firmness and steadfastness. FIRM, firm and ESS. Firmness and steadfastness. Patience. Steadfastness. Yes, third. Now you have to write down third points. Next point, never give up. Yes. Number 1, patience. Number 2, firmness and steadfastness. Number 3, never give up. Number 4, never take revenge from enemies. Never give up. Yes, next point is never take revenge. Okay. Excuse me. Patience. Number 1, patience. Number 2, firmness, steadfastness.
Number 3, never give up. Number 4, never take revenge. Okay. The last point is seek help only from Allah. Seek help only from Allah in times of difficulty. Beta, why are you not writing? I'm asking you. Okay. After that, part B answer is complete now. After that, I'm going to explain year of grief. I explained on that day. Now come to marriage with Hazrat Sauda Hazrat Aisha. Okay. So now I am explaining marriage with Hazrat Sauda Hazrat Aisha. No. I'm just explaining. Now you have to listen to me. Okay. Okay. Excuse me, students. Could you please come here? You have to sit there. Okay. As far as 10th year of prophethood is concerned, Abu Talib died and Hazrat Khadija also died. So Prophet peace upon him was so sad that he declared that year the year of grief, Amul Huzun. Okay. In 10th year of prophethood, the Holy Prophet peace upon him has had 4 daughters at that time: Hazrat Zainab, Hazrat Ruqayya, Hazrat Kulthum, Hazrat Fatima, and there was no one to support or to take care of them. So therefore, the Holy Prophet peace upon him, Hazrat Sauda Raziallahu Ta'ala anha, she had come back from Abyssinia because in Abyssinia her husband Sakran bin Amr had died. तो उनकी भी प्रोटेक्शन करने वाला कोई नहीं था. तो कंपेनियंस ने खास तौर पे हजरत खौला ने ये सजेशन दिया आप को कि प्लीज़ आप उनसे शादी कर लें हजरत सौदा से, उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और आपकी बच्चियों की देखभाल हो जाएगी. तो आप द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम मैरिड second time with Hazrat Sauda. At that time she was 55 years old, the Holy Prophet was 50 years old. यानी आप ने अपनी पहली शादी 25 years की एज में हजरत खदीजा से की जो कि 40 years की थी, और दूसरी शादी 50 years की एज में 55 years की खातून हजरत सौदा से की. ओके. हाँ, yes. And now come to at the same year आप ने हजरत आयशा से शादी की. At that time she was only 6 years old, but walima ceremony was celebrated in Medina in second year of Hijra after 4 years when she was 10 years old. यानी आप ने हजरत आयशा से निकाह किया नबूवत के 10वें साल में जब उनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी, और उनसे रुखसती की माइग्रेशन टू मदीना के सेकेंड ईयर ऑफ हिजरा में जब उनकी उम्र 10 ईयर्स थी. अब क्वेश्चन ये होता है कि आप ने इतनी कम उम्र में उनसे शादी क्यों की. तो जब मैं आपको इंशाल्लाह वाइज ऑफ द होली प्रॉफिट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने ही वांटेड टू स्प्रेड इस्लाम, देयरफॉर ही मैरिड सो मेनी वुमेन एंड ही वांटेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देम. उनके देखभाल करने वाला कोई था, इसलिए आप ने उनसे शादी की. हज़रत आयशा से शादी करने का एक ही रीज़न था कि ताकि वो उनके इंतकाल के बाद ज़्यादा अरसे तक इस्लाम को फैला सके, ख़ासतौर पर ख़वातीन में. और यही हुआ कि होली प्रॉफिट के इंतकाल के बाद 48 ईयर्स तक हज़रत आयशा जिंदा रही और उन्हें बहुत इस्लाम फैलाया, ख़ासतौर पे ख़वातीन के अंदर. तो मैरिज विद हज़रत सौदा हज़रत आयशा वाला बच्चों पॉइंट क्लियर है. शाबाश, वेरी गुड. नाउ कम टू बोलो. अच्छा, नाउ कम टू हज़रत सौदा से शादी की तो उसके बाद हज़रत आयशा से निकाल. नाउ बेटा, थैंक यू. Now come to visit to Taif. Okay, so visit to Taif. जब भी ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, जब भी कोई विजिट टू ताइफ, जब भी कोई इवेंट लिखते हैं 10 मार्क्स का, तो हम डायरेक्टली वी डोंट राइट एनी इवेंट. फर्स्ट वी हैव टू राइट कॉजेस. थैंक यू. अब देखो कॉजेस क्या थे ताइफ के. अब 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में जो लास्ट इवेंट हुआ है वो ताइफ का वाकया हुआ है. और व्हाट वर द कॉजेस इन 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड. द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वाज वेरी अपसेट. क्यों? बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ Uncle Abu Talib and his wife Khadija. Lost moral and financial support both. Okay, this was the first reason. And after that, Abu Lahab became the head of the tribe, and his attitude toward the Holy Prophet peace upon him was very hostile, unfriendly. So this was the reason to migrate, to go to Taif.
And the Holy Prophet, peace upon him, also became hopeless from the people of Makkah that they will not accept Islam anymore. तो इसीलिए आप सबने सोचा, बेटा you have to ask the question when I complete it. Okay, in between please don't ask. Okay, he had many uncles, such as Zubair bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab, Abu Talib. Okay, so अब क्या है कि these were the events. Now come to the Holy Prophet, peace upon him, wanted to try his luck 60 miles a valley 60 miles away from Makkah, which was called Taif. वेल पॉपुलेटेड ग्रीनरी एरिया था, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी वहाँ पर। तो आप हम वहाँ पे इस्लाम फैलाने के लिए गए और अपने साथ अपने मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को ले गए। तो वहाँ पे जो 3 चीफ्स थे, भाई थे वो तीनों के तीनों, अबियालैल, मसूद एंड हबीब। ओके, तो अबियालैल, मसूद एंड हबीब, these 3 were the chiefs of Taif. So Holy Prophet peace upon him took Hazrat Zaid bin Harisa with him. Okay, so Acha. So when the Holy Prophet went there, so he preached Islam to those 3 brothers. So they not only rejected the message of Islam, but also asked the teenager boys to chase the Holy Prophet peace upon him and to throw the stones at him and to abuse, and इस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने गली के आवारा लड़कों को आंसुओं के पीछे लगा दिया। लेकिन और दे यूज टू थ्रो द स्टोन्स एट हिम, और जब आंसू गिर जाते थे फिर वो लोग उठाते थे और फिर भगाते थे गलियों में और इसी तरह पत्थर मारते थे, अब्यूजिव लैंग्वेज गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे। Hazrat Zaid bin Harisa tried to save the Holy Prophet peace upon him, but he himself was badly wounded on his head. उनको भी पत्थर लगे थे तो वो बचा नहीं सके। और 10वें दिन तो, लेकिन उस मुश्किल कंडीशन में भी आप सब केप्ट प्रीचिंग इस्लाम फॉर 10 days इन टाइम। 10वें दिन तो हालत बहुत ख़राब हो गई और stones were thrown at him on such a level that his shoes were filled with blood, और खून से भर गए। और आप सब जब ताइफ से बाहर निकले तो उतबा बिन रबिया का गार्डन था। उतबा अगरचे एनिमी था, लेकिन उसने देखा अरब जो थे ना वो बहुत मेहमान नवाज थे, हॉस्पिटेबल थे। अकबर ने देखा कि मोहम्मद जो है इस वक्त बहुत तकलीफ में है, राइट, इस वक्त बहुत तकलीफ में है, लेकिन है तो भले दुश्मन है तो क्या हुआ, लेकिन इस वक्त तकलीफ में। तो उन्होंने अपने स्लेव अदास से कहा कि ये बंच ऑफ ग्रेप्स ले जाके उनको दे दो, कुछ खा लेंगे तो उनको थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। तो वो जो अदास स्लेव था वो बंच ऑफ ग्रेप्स लेकर गया, उसने आसम को दिया इस तरह से। तो द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम सेड बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो उसने कहा कि मैंने तो ये वर्ड पहले कभी नहीं सुना। तो आसम ने बताया कि मैं एक अल्लाह का नबी हूँ और यहाँ पर मैं ताइफ में इस्लाम फैलाने के लिए आया था। तो आसम ने उससे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करते हो? तो उसने बताया कि मेरा ताल्लुक़ नैनवा से है। तो आसम ने बताया कि ये तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर है। तो वो हैरान हो गया कि ये तो सिर्फ हमारे इलाके के लोगों को पता है, वो भी कुछ लोगों को पता है जो कि हज़ारों साल पहले, मतलब एक तरह से साल पहले यहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आए थे। तो ही was very impressed and he embraced Islam and he started kissing the hands of the Prophet peace upon him. दूर से उतबा देख रहा था। जब वो अदास उतबा के पास आया तो उतबा ने कहा कि तो उतबा ने कहा कि इसकी बातों में नहीं आना, ये मोहम्मद ये जादूगर है नौजुबिल्ला। एक बार बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ाकल्लाह। तो ये जादूगर है कि लोगों को जादू से अपने उसमें उतार लेता है, इसकी बातों में नहीं आना। लेकिन ही हैड एम्ब्रेस इस्लाम, वो इस्लाम कबूल कर चुका था। नहीं, अब उसके बाद जब आसम उतबा की गार्डन से आगे निकले तो करनु सालिब एक जगह थी, वहाँ पे एंजल ऑफ माउंटेन और जिब्रील आए और आसम ने फरमाया कि अगर आप हुक्म दें तो हम ताइफ की वैली को दोनों पहाड़ों के दरमियान डिस्ट्रॉय कर दें जो इन्होंने सलूक आपके साथ किया। तो आसम ने फरमाया कि नहीं, आई वॉज सेंट एज अ ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड, मैं तो दोनों जहाँ की रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, रहमत लिल आलमीन। वाई शुड आई प्रे फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज पीपल, आई होप देयर डिसेंडेंट्स विल सर्टेनली बी अमंग द बिलीवर्स इन अल्लाह। मैं इनके खिलाफ बदुआ क्यों करूँ, मुझे उम्मीद है कि ये ना सही इनकी आने वाली नस्लें ज़रूर इस्लाम कबूल करें। और यही हुआ कि आसम की ये दुआ 12 साल के बाद कबूल हुई कि यानी कि इस वाक़े के 3 साल तक मजीद होली प्रॉफिट मक्का में रहे और 9th ईयर ऑफ हिजरा माइग्रेशन टू मदीना के 9वें साल द होल पीपल ऑफ ताइफ केम टू मदीना इन द एक्सटेंडेड इस्लाम। तो ये जो 2 कोटेशंस हैं वो आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट सेड आई वाज सेंट एज अ ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड एंड ही आल्सो सेड व्हाई शुड आई प्रे फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज पीपल, आई होप देयर डिसेंडेंट्स विल सर्टेनली बी अमंग द बिलीवर्स इन अल्लाह।
बहुत थोड़े टाइम पे। अच्छा, उसके बाद only 2 to 3 classes. Yes, it's very long chapter of Islamiyat. The whole chapter Islamiyat के ये सबसे लंबा chapter है. अच्छा, and after that the Holy Prophet came मतलब towards मक्का, और मक्का की तरफ आगे गए तो there was a place नखला. नखला कहते हैं खजूर के बागात को. वहाँ पे चूँकि बहुत सारे खजूर के बागात हैं तो इसीलिए उसको नखला कहा जाता है. Over there the Holy Prophet peace upon him was reciting the Holy Quran in prayer. नमाज में कुरान पढ़ रहे थे तो कुछ जिनों का गुजर हुआ, तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने वो बाकी सारे जिनों को बुला के लेकर आए और पूरे जिनों के ग्रुप ने इस्लाम कबूल किया. सूरज जिन 29वें पारे में कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, कि जिन्होंने कहा कि हमने कुरान बहुत अजीब सा कुरान सुना है, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने आसमान के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया. अल्लाह ने दिखाया कि ए मेरे नबी, अगर इंसानों ने आपके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए तो क्या हुआ, अगर इंसानों ने आपके ऊपर आपका खून बहाया तो क्या हुआ, लेकिन मैंने जिनों को आपके हाथ पे इस्लाम कबूल करके आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया. फिर आप सबने सोचा कि अगर मैं मक्का जाऊंगा तो मक्का के लोगों को पता चलेगा कि मैं इस्लाम फैलाने गया हूँ तो वो मुझे मारेंगे. तो आप सब ने 1-2 लोगों से रिक्वेस्ट की कि मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, मेरी हिफाजत की जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया. बट ओनली मुतिम बिन अदी वॉज अ नॉन मुस्लिम पर्सन. ही सेड यस यू हैव टू कम, आई विल प्रोटेक्ट यू. तो मुतिम बिन अदी अपने अपने बेटों के साथ तलवार लेके खाने काबा के पास खड़ा हो गया. आसम आए और खाने काबा का तवाफ किया और अपने घर चले गए. आसम ने फरमाया इस वाक़े के 5 साल के बाद बैटल ऑफ बदर हुई. 3 साल के बाद माइग्रेशन टू मदीना हुई. माइग्रेशन टू मदीना के 2 साल के बाद बैटल ऑफ बदर हुई. तो आपको पता है कि उसमें कितने कैदी पकड़े गए थे कुरैश के? 70. तो आसम ने फरमाया कि if Mutim were living today, I would have released these 70 people and I would have handed them over to him. यानी अगर आज मुतिम बिन अदी जिंदा होता और मुझसे इन 70 लोगों के बारे में कहता रिलीज़ करने का, तो उनको फ़ौरन रिलीज़ कर देता और उसके हवाले कर देता. क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरी उसने मदद की जब अल्लाह के अलावा कोई और मदद करने वाला नहीं था. यानी किस वक्त मदद की थी? मुतिम बिन अदी ने आपसे समझी. हाँ, वेरी गुड. ताइफ से वापसी पर. ठीक है, क्लियर बेटा? आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह आप पर सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? तो आप ने फरमाया कि आयशा, मुझ पर सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था कि जब उन्होंने मुझ पर पत्थर बरसाए, और वो बहुत मुश्किल दिन था. तो क्योंकि जब आप गिर जाते थे तो वो उठाते थे वो लड़के और फिर भगाते थे, फिर पत्थर मारते थे, इस तरह से करते थे. क्लियर है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? Okay. Now please just read out this and after that I will ask the question. Is it clear? Okay. All right. No. There were only 26 pages total. Oh, now please come. Can anyone tell me why the Holy Prophet went to Taif? To preach Islam. Okay. And who was with the Holy Prophet at that time? Very good. His adopted son was Zaid bin Harisa. Excellent. And how many miles it was away from Makkah? This valley. Very good. Okay. And now 60. Okay. And Holy Prophet, peace upon him, had become hopeless from people of Makkah. Very good. That they will not accept Islam anymore. Therefore, the Holy Prophet went. And Abu Lahab's attitude was very hostile. Now, can you please tell me the three names of three leaders who were the brothers? Number one, Abyalel, Masood, and Habib. मेरे साथ बोलो, Abyalel, Masood, and Habib. Very good. Now, when the Holy Prophet preached Islam to them, so what they asked the teenager boys? They not only rejected the message of Islam, but also asked the and to throw their stones there. In that extreme difficult condition, how many days the Holy Prophet kept continuing? 10 days. Very good. And after that, the Holy Prophet stones were thrown at him on such a level that his very good. The shoes were well. He came out, and where he stayed at garden of Utbah bin Rabiya. ये वही उद्बा है जो वो थ्री ऑल्टरनेटिव लेकर आया था कि मैं आपको मैरी विद द फेयरेस्ट वुमेन, याद है? और कुरैश प्रपोजल के अंदर.
अच्छा, उसके बाद वहां पे क्रिश्चियन स्लेव, व्हाट वाज द नेम ऑफ क्रिश्चियन स्लेव हु एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन द हैंड ऑफ द प्रॉफिट? अदास। ओके, क्रिश्चियन स्लेव अदास। ओके, अदास के बाद फिर वहां से कर्नुस सालिब के कौन आए थे जिन्होंने कहा था कि अगर आप हुक्म दे तो हमें ताइफ की वैली को दोनों पहाड़ों में and in of mountain. Okay, so the holy prophet peace upon him forgave them, and what he said, I was sent as a blessing to the world, and he also said, why should I pray for the destruction? हाँ, आई होप ये डिसेंडेंट्स। तो कितने साल के बाद होली प्रॉफिट की दुआ कबूल हुई? 12 ईयर्स के बाद। वेरी गुड। और जिन्स ने कहाँ पे इस्लाम कबूल किया था, किस जगह पे? नखला। वेरी गुड, एक्सीलेंट। प्रॉफिट किसकी प्रोटेक्शन में एंटर हुए मक्का के अंदर? मुतइम बिन अदी। बोलो मेरे साथ, मुतइम बिन अदी। वेरी गुड, ठीक है। और आसुसन ने बैटल ऑफ बदर के टाइम पे क्या कहा था 5 साल के बाद, जब 70 कुरैश पकड़े गए? आई वुड हैव हैंडेड देम ओवर। क्लियर है? अब जल्दी से प्लीज राइट डाउन पार्ट ए क्वेश्चन। Have you written the heading of visit to Taif? No, I think you have not. Just please write the heading of visit to Taif, then write this question, please, part A. No, no, it's okay. With the same page, you can start. Part A, describe the main events of Taif. Describe the main events of Taif. Okay. Now, please, it's very strange. ये देखो, describe the main events of Taif. ठीक है? Part A, full stop. Just write P1 causes. P1 causes, P2 events. Or there is no need to write causes and events. You can see from LMS Word. Describe the main events of Taif. Answer is there in LMS Word. P2 events. Just it. Okay. So I am not dictating you causes, Abu Lahab's attitude or this thing. You already know about it. Okay. Events of Taif. P1 causes, P2 events. Bas, just it. Okay. हाँ, 2 पैराग्राफ, only 2 पैराग्राफ. Okay. Now please write down this part B. How can Muslims apply? Just please write down the question of part B. How can Muslims apply? No, there's no need to write. Leave the line. Apply in practice the lessons. Can you see now? How can Muslims apply in practice? In practice the lessons learned from the Prophet's behavior in this situation. How can Muslims apply the lessons? How can Muslims apply in practice the lessons learned from the Prophet's behavior in this situation? Question mark, bracket में 4 लिखो. Okay? Lessons learned from the Prophet's behavior in this situation. Is it okay? Okay. Can anyone tell me what are the 2 key words in this question? Very good. Apply and lesson. Please underline these 2 words, apply and lesson. यानी अगर एक बच्चे ने शायद से लेसन्स लिख दिए, लेकिन अगर उसकी एप्लीकेशन नहीं लिखी कि पेशेंस आज के दौर में कहाँ अप्लाई हो रहा है, या फॉर्मनेस, स्टेडफास्टनेस कहाँ अप्लाई हो रही है, या फॉरगिवनेस, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे. नो. अच्छा देखो, ये कैन एनीवन टेल मी, ये आप लोग ये ऑलरेडी आंसर लिख चुके हैं. What was the previous heading where you have written this answer? आप देखो, जल्दी से ओपन करो, प्रॉफिट्स डिफिकल्टीज की हेडिंग डालो, वो पीछे देखो. नहीं, प्रॉफिट्स डिफिकल्टीज.
वहां पे एक सवाल था, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड बाय द प्रॉफिट हिमसेल्फ ड्यूरिंग हिज टाइम इन मक्का आफ्टर हिज कॉल टू प्रॉफिटहुड, और उसका पार्ट भी था हाउ डज हिज कंडक्ट इन वन ऑफ दीज डिफिकल्टीज प्रोवाइड एग्जांपल फॉर मुस्लिम्स टुडे। तो उसका पार्ट भी देखो वहां लिखा होगा कि फ्रॉम द इवेंट ऑफ टाइफ वी लर्न मेनी लेसन्स। कैन यू सी बेटा? तो वो पूरा लेसन ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो यहां लिख दो, आंसर में लिख दो नो नो सेम एज प्रॉफिट्स डिफिकल्टीज, सेम एज प्रॉफिट। हाँ हाँ हाँ, पार्ट बी का आंसर आप ऑलरेडी लिख चुके हो पीछे। सेम एज प्रॉफिट्स डिफिकल्टीज, और प्रॉफिट डिफिकल्टीज तो हेडिंग है, और उसके बाद ब्रैकेट में वो क्वेश्चन लिख दो, हाउ डज हिज कंडक्ट डॉट, आगे डॉट्स लगा दो, यानी सेम एज प्रॉफिट डिफिकल्टीज, और वहां पे कौन सा क्वेश्चन है, हाउ डज हिज कंडक्ट, ओके, आगे डॉट्स ब्रैकेट क्लोज। अगर तुम्हें, हाँ, हाउ डज हिज कंडक्ट 2-3 डॉट्स ब्रैकेट क्लोज, आंसर कंप्लीट। दोज हु आर न्यू, थैंक यू, दोज हु आर न्यू, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि कैसे लेसन निकलेगा। देखो कि जो जिन क्वेश्चन में टुडे का वर्ड हो, दीज डेज का वर्ड हो, आज के दौर की बात हो, तो उसको 3 स्टेप होते हैं सॉल्व करने के। बेटा प्लीज लिसन टू बी केयरफुल, ठीक है? 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1, पहले हम पार्ट ए से कनेक्शन बनाते हैं। पहले कनेक्शन क्या बनाएंगे कि व्हेन मोहम्मद पीस अपॉन हिम वेंट टू प्रीच इस्लाम इन ताइफ, स्टोन्स वर थ्रोन एट हिम ऑन सच अ लेवल दैट हिज शूज वर फिल्ड विद ब्लड। ये हो गया कनेक्शन पार्ट ए से। अब इसके बाद इसका लेसन निकालेंगे कि दिस गिव्स अस लेसन दैट वी शुड रिमेन पेशेंट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। अब ये लेसन हो गया, अब इसकी एप्लीकेशन बताएंगे कि अब हम पेशेंस कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो बताएंगे कि फॉर एग्जांपल वी शुड रिमेन पेशेंट ड्यूरिंग इलनेस, बीमारी में। अक्सर लोग कहते हैं यार मैं बीमार क्यों पड़ता हूँ, इतना सेहत का ख्याल करता हूँ, वो बंदा तो सर्दी में घूम रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि तो ड्यूरिंग इलनेस में आपको पेशेंस रहना चाहिए, और टॉर्चर जैसे कश्मीर पैलेस्टाइन के लोगों को पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए, और डेथ ऑफ रिलेटिव्स अक्सर ये होता है कि नहीं सब्र आता, तो उस वक्त पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए, और रश आवर्स इन ट्रैफिक, खामों का हॉर्न दे रहे होते हैं खुद, तो उस वक्त पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। तवाफ के दौरान अगर कोई आपको धक्का दे देता है तो रिटर्न में आप उससे बड़ा धक्का ही देंगे उसको, बल्कि यू हैव टू रिमेन पेशेंट। तो ये हो गए सारी एप्लीकेशन जो आज के दौर की है। फिर हम एक कनेक्शन बनाएंगे ताइफ से कि व्हेन Prophet kept preaching Islam in Taif for 10 days in that extreme difficult condition. ये हो गया कनेक्शन। This gives us lesson that we should remain firm and steadfast in our religion. हाँ, और एप्लीकेशन क्या हो जाएगी आज के दौर में कि मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर, पैलेस्टाइन, सीरिया, बर्मा आर बीइंग टॉर्चर्ड, सो इन दिस सिचुएशन दे शुड रिमेन फर्म एंड स्टेडफास्ट इन देयर रिलीजन। हो गया, कनेक्शन बना रहे हैं, लेसन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन बता रहे हैं। नंबर 3, आखिरी पॉइंट, व्हेन एंजल ऑफ माउंटेन आस्क्ड हिम टू इल प्रे का मतलब बदुआ देना, for the people of Taif, the Holy Prophet did not ill pray, instead he forgave them. ये हो गया कनेक्शन। लेसन क्या होगा, हाँ, this gives us lesson that we should never take revenge from our enemies, but we should forgive them. हो गया। एप्लीकेशन क्या है, मैंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखवाई है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट सेट द ग्रेट एग्जांपल ऑफ फॉरगिवनेस बाय रिलीजिंग द अभिनंदन द इंडियन पायलट, है ना? हाँ, मूछों वाले भाई साहब, द टी वाज वेरी गुड, ठीक है, तो जो भी है, हाँ फैंटास्टिक। तो खैर ये जो भी है, ये तो एक है, लेकिन अब एक सवाल डिफरेंट आ गया पार्ट बी का। ये तो 2012 की वर्डिंग थी, ये वाली जो मैंने बताई आपको। 2017 में एक नया पार्ट बी आ गया, देखो उसकी वर्डिंग, एक सिर्फ तो ये क्वेश्चन लिख लो, सिर्फ एक 2017 की हेडिंग डालो, पार्ट ए में लिख दो सिर्फ टाइप, उसका बी लिखो, बी क्वेश्चन लिखो सही से। 4 हमेशा 4 मार्क्स का होता है बेटा पार्ट बी, ठीक है? पार्ट बी विल ऑलवेज बी 4 मार्क्स। हाँ, पार्ट ए में टाइप, मैं उसकी वर्डिंग नहीं लिखवा रहा आपको, ठीक है? नाउ कम, जस्ट राइट द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी। द प्रॉफिट शोड ग्रेट फॉरगिवनेस। अब मैं पार्ट बी का क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। द प्रॉफिट शोड ग्रेट फॉरगिवनेस despite the cruelty of the people of Taif, despite the cruelty of the people of Taif, Crulty. No, this is question. Part B question. Part B question.
पार्ट ए में तारीफ का वाक्य था, वो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवाया, बस आप पार्ट ए में सिर्फ तारीफ लिख दो बस. The prophet showed great forgiveness despite the cruelty of the people of Taif. Full stop. Do you think Muslims now can follow this example? Do you think Muslims now can follow this example? क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में 4 लिखो. अब कोई मुझे बताए कि इस जो मैंने अभी तुम्हें आंसर बताया था, डू यू थिंक, बता रहा हूं, डू यू थिंक Muslims now can follow this example? Muslims now can follow this example? क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में 4. अब मुझे बताओ कि वो जो सवाल था ऊपर वाला पार्ट बी अप्लाई और लेसन वाला, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस है या दोनों सेम सेम है? दोज हु आर सेइंग सेम प्लीज काइंडली रेज योर हैंड. 1 2 3 4 5 6 7. Okay. And those who are saying that they are different, kindly raise your hand. 1 2 3 4. बेटा प्लीज टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस इन दोनों क्वेश्चन में, क्या डिफरेंस है बताओ. यस बेटा आप प्लीज बताओ. अच्छा ओके, सो कैन यू प्लीज टेल मी बेटा व्हाट्स द डिफरेंस इन दीज टू क्वेश्चन. सही है, पहले वाले में राइट. नंबर 2. ओके नो प्रॉब्लम, एक मिनट. तुम तो आप तो कह रहे थे ना कि वो दोनों सेम, तो फिर इसमें डिफरेंस, मैं तो डिफरेंस पूछ रहा हूँ जी. वर्दा ओके प्लीज बेटा, यू विल नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट distracting, being distract and distracting others. Okay, all right, please, okay, just please tell me the difference. Same है. ओके गुड, ठीक है बेटा. डिफरेंस ये है कि पहले वाले में एग्जामिनर ने ऑप्शन दे दिया कि सारे लेसन बता दो, लेकिन दूसरा वाला जो पार्ट बी है उसमें सिर्फ फॉरगिवनेस पूछ रहा है, उसमें पेशेंस नहीं पूछ रहा, उसमें फॉर्मनेस और स्ट्रेट फास्टनेस की पूछ रहा है. उसमें सिर्फ वो स्ट्रिक्ट है सिर्फ एक ही उसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर. देखो वहाँ पे फॉरगिवनेस लिखा हुआ है पार्ट दूसरे वाले में. हाँ फॉरगिवनेस है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो आंसर बहुत छोटा हो जाएगा कि फॉरगिवनेस की, क्योंकि आपको सिर्फ डेली एग्जाम्पल एक ही याद है, एक ही याद है. तो इसको किस तरह लिखोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ. आप लिखोगे कि when angel of mountain came to the holy prophet, just listen. When angel of mountain came to the holy prophet and asked him to ill pray, the holy prophet did not ill pray, instead he forgave them. This gives us lesson that we should not take revenge from our enemies, but we should forgive them. ये हो गया कनेक्शन फॉरगिवनेस का. अब इसके बाद आप लिखोगे, अब आपको डेली एग्जाम्पल बढ़ानी पड़ेगी. अब मैं आपको 4 डेली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कहीं एक लिख देना, कहीं 2 लिख देना, कहीं आंसर छोटा हो रहा तो 3 लिख देना, कहीं 4 लिख देना, मर्जी तुम्हारी. मैं फॉरगिवनेस की आपको 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एक एग्जाम्पल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कौन सी, अभिनंदन वाली, जो अभी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज सेट द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फॉरगिवनेस बाय रिलीजिंग द अभिनंदन, द इंडियन पैरेट अभिनंदन. क्लियर है. अब मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा कि फिशरमैन ऑफ इंडिया. आप ऐसा करें, अभी कुछ लिखने मैं लिखवाऊंगा इसको आपको. फिशरमैन ऑफ इंडिया सुने क्या है? इंडिया के कुछ लोग बेचारे वो फिशिंग जो करते हैं, मछेरे, वो फिशिंग करते करते हमारी अपनी सी बाउंड्री क्रॉस करके हमारे एरिया में फिशिंग कर रहे होते हैं. सी में कोई दीवार तो होती नहीं है, पता नहीं चलता, तो हमारे नेवी के लोग, होती है लेकिन बाज़ औक़ात नहीं नजर आती इस तरह, तो हमारे नेवी के लोग उनको अरेस्ट कर लेते हैं, और कभी हमारे फिशरमैन उनके बाउंड्री में जाते हैं तो इंडियन आर्मी उनको वो कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है. अच्छा, तो अब कभी कभी क्या होता है कि दोनों गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज कर लेती हैं अपने प्रिजनर्स से, और कभी बेचारे वो गरीब लोग वहाँ पे सड़ते रहते हैं जेलों में, तो वो तो नॉन मुस्लिम कुछ भी करें. आप ये लिखेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड रिलीज द फिशरमैन ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर यूजुअली पुअर पीपल. हो गए ये 2 एग्जाम्पल समझ में. तीसरी एग्जाम्पल है कि इफ एनी डोंकी कार्ट, रिक्शा और बाइक्स हिट्स एवर व्हीकल एट दैट टाइम वी शुड फॉरगिव देम बिकॉज दे आर यूजुअली पुअर पीपल. सही है, अगर जहाँ पे तुम्हें माफ कर सकते हो तो कर दो. 3 हो गए. चौथी एग्जाम्पल है
वो अभी तक को एग्जाम्पल है, पता नहीं आप 2022 में जब आप प्लेयर हो रहे होंगे तो उस वक्त आपकी ये वाली एग्जाम्पल रहेगी ना रहेगी, उस वक्त अगर आप न्यूज़ में आपको पता चल जाएगा। कुलभूषण यादव एक रॉ एजेंट थे, आपने देखा होगा, है ना। हाँ, तो वो क्या है कि वैसे तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसने एडमिट किया हुआ है कि मैंने बहुत जगह बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है और बहुत बलूचिस्तान में बहुत सारी जगहों पे मैंने वो किया है। लेकिन मार्क्स लेने के लिए आपके पास ये एग्जाम्पल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड रिलीज द कुलभूषण यादव, the raw agent, to set the example of forgiveness with non-Muslim countries. ठीक है, तो आप जल्दी से आप लोग क्या करें, डी डॉट ई डॉट जी लिखें, यानी इस सवाल की यानी डेली एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म है ये। नहीं होते मतलब ज्यादा नहीं, अगर बहुत ज्यादा होंगे तो उनके ओवरऑल कर जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं करते इस्लाम में। अच्छा, डी डॉट ई डॉट जी डेली एग्जाम्पल लिखनी। नंबर 1 पे लिखो अभिनंदन, नंबर 1 पे लिखो अभिनंदन। नंबर 2 पे फिशरमैन ऑफ इंडिया, ABHINANDAN। हाँ, फिशरमैन ऑफ इंडिया। नंबर 3, इफ एनी डोंकी कार्ट, कॉमा रिक्शा और बाइक हिट्स हर व्हीकल, आगे डॉट लगा दो। इफ एनी डोंकी कार्ट, बाइक और रिक्शा हिट्स अवर व्हीकल, व्हाई नॉट राइटिंग। ठीक है, आगे डॉट, जस्ट प्लीज द डॉट, कीप द डॉट 5 मिनट। ओके, सो हाँ, आगे डॉट्स लगा दो। डॉट्स का मतलब वो आप आगे खुद सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट, हाँ, नंबर 4 लिख दो, कुलभूषण यादव, KALBOSHAN, कुलभूषण KALBON, हाँ, KALBOSHAN, कुलभूषण यादव, YADAV, हाँ DAV। आपको लास्ट हमने पढ़ा था। ये बताओ कि ताइफ का तो मैंने क्वेश्चन कर लिया था, फॉरगिवनेस की भी कर लिए सब तरह से। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट वाज द नेम ऑफ अबू लहब वाइफ, जो कांटे बिछाती, उम्मे जमील। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। किसने फिल्थ ऑफ द कैमल रखी थी? और मोहित, शाबाश, उकबा बिन मोहित, वेरी गुड, ठीक है। एंड नाउ प्लीज टेल मी के व्हाट वाज द नेम ऑफ अदर खदीजा स्लेव? वेरी गुड, शाबाश। और हर फ्रेंड व्हाट वाज? नफीसा, वेरी गुड। और ओल्ड मैन हु गेव एडवाइस? अबू उमैया, वेरी गुड, बिन मुगीरा। एंड व्हाट वाज द एज ऑफ द प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन? 35, वेरी गुड। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बहीरा? जुर्जीज, ओके, गुड। व्हाट वाज ए प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हर्बल फिजार? 15, excellent, very good. And at the time of journey to Syria, what was his age? 12, very good. Or at the time of marriage with other Khadija? Very good. मेरे साथ बोलो, Allah says, did he not find you an orphan and give you shelter? He also said, मतलब Allah says, बोलो Allah says, and he found you in need and made you independent.